Hello students, let's continue our discussion where we have stopped. In last week's session we have discussed data transfer modes, different data transfer modes. That is, there are basically three modes of data transfer: program controlled, interrupt initiated, and data direct memory access. We'll see in detail. Now let's discuss first, that is a priority interrupt. Priority itself is the term that we normally use when we need to when we need to prioritize something. So priority interrupt. So whenever, see, in this scenario, we know what is interrupt. Interrupt is something which triggers someone to stop their execution and focus on some subroutines to be executed, right? So in our case, when there is a data transfer is available, or the devices are ready for the data transfer, then the interface will give an interrupt signal to CPU, so that whenever CPU receives the interrupt signal, it will stop his execution or some execution, and it executes some subroutines which will handle that interrupt, right? So that is what the basic scenario. Now let's say there will be multiple devices which are connected to CPU, and that it may possible because sometimes all those the devices or all the interface will give us interrupt signal to the CPU at the same time. So at that time, there is a concept of priority interrupt, where each interface or interrupt is having assigned a priority. So different mechanisms are used to for the priority interrupt. So the priority, what is priority? It determines which interrupt is to be served first when two or more requests are made simultaneously. So it also determines which interrupts are permitted to interrupt the computer while another is being served. So let's say if some processor is serving some interrupt or some devices, when more than one devices have requested for the processor, let's say, interrupted the processor. Let's say if CPU currently executing some instruction, or giving service to the some device or some data transfer or any other things, right? So if it is in a continuation, if it is in a execution of one program, so which are the other devices? Let's say sometimes it may happen that if processor is processing something, in between processing, it may possible that some of the important things need to be completed. So in between the processing, there need to be provide some interrupt signal. So what CPU will stop their execution and serve that another interrupt which is having a very important task. Okay, so that important devices, important tasks can be assigned through the priority. So if some of the devices are having assigned a higher priority, so if the processor is serving some low priority device, in between them, when processor is processing something, in between them, if the higher priority device will interrupt the CPU, at that time CPU needs to stop a lower priority interrupt, and then it need to serve the higher priority interrupt. So that is the basic things that normally whenever there is a priority interrupt or interrupt service routine or some other things which are the concept, let's say, are there available in operating system. So same concept are applicable here, but in different contexts. So it also helps to priority interrupt. So this is where we can assign different priorities to different interrupt service devices, so that it helps us to determine which interrupts are permitted to interrupt the computer while another is being served. And the higher priority interrupts can make requests while serving a lower priority interrupt, right? So this is what we have discussed. So there are two ways through which we can achieve a priority interrupt. One is by software, priority interrupt by software, that is polling. Polling is something which is continuously run some program to check some conditions, right? So priority is established by order of polling the devices. Okay, so each time some program subroutines are going to be executed or something, we continuously monitor that that particular devices are ready or not or something. It is flexible in sin, it is established by software, so there is a program which is written for the same. It is low cost because it doesn't require some hardware implementation and other things, and comparatively slow. Whereas in priority interrupt by hardware, there are two ways through which we can achieve a priority. We can assign a priority to different devices. So first is by software, and the second is by priority interrupt by hardware. So in this second way, it requires a priority interrupt manager which accepts all the interrupt requests to determine the highest priority interrupt request. It fast, since identification of the highest priority interrupt request is identified by the hardware.
First, since each interrupt source has its own interrupt vector to access directly to its own service routine. Okay, so service routines are there where vector service routine are there. Vector addresses are there where to handle that particular interest there are some routines. Service routine in terms of some of the small programs which is written for the interrupt handling. Okay, now let's see, to understand it completely, let's understand this diagram. That is hardware priority interrupt daisy chaining method. Right now, in this case, suppose this is what a hardware implementation for the priority interrupt. So in this case, we can say that, see, there are number of devices, device 1, device 2 and devices 3 are there, right? And there is a CPU. Now let's see, in this case, all the devices all the devices are connected in a chain, okay, one after another. Now that order declares the priority. So device 1 is having a, you can say device 1 is having a highest priority because it is nearer to CPU, right? In this case, the first signal will go to device 1, then device 2 is having bit lower priority as compared to 1 and 3. Likewise, there is a chain where the first device is having highest priority, second is having lower priority, and third is having another lower priority. Now in this case, see, normally all those devices, it may possible that all the devices are going to give an interrupt request simultaneously, or you can say some of the lower priority device will give an interrupt request. So even though whatever the scenario doesn't matter, but whenever if any device want to give an interrupt signal, that particular device will send an interrupt request device. That means what, the interface of that particular device will send an interrupt request to the CPU. Now interrupt request is going to be forwarded to CPU. Now to respond this interrupt request, CPU will send an interrupt acknowledgement signal, right? To respond to interrupt request, the CPU will send an interrupt acknowledgement signal, but any device who will receive this interrupt acknowledgement signal, that will be in order, in a prioritized order. That means what, whenever CPU will respond to this interrupt request, it will the acknowledgement signal will first go to the device 1. Why? Because it is having a highest priority, and it is in the first device which is in the chain, right? So the first priority will given to the device 1. But in this case, let's assume that instead of device 1, device 2 had made interrupt request. But so it doesn't matter whether directly device 2 is had an interrupt request or not. What CPU will do? CPU will give this interrupt acknowledgement, and that interrupt acknowledgement signal passes through device 1, then lower priority device, and then lower priority devices, right? So first preference will be given to the device 1. So that particular acknowledgement signal will go to priority in. There are two in and out, priority in and priority out commands are there, signals are there. So in this case, that interrupt acknowledgement signal will first go to device 1. In this case, let's say device 2 had made an interrupt request. So what this priority in and PO is, that will be 0 0, you can say in this case. Why? Because device 1 didn't send an interrupt request. Fine. So simply device 1 will forward this priority in as a priority out. Okay, so priority in में जो आ रहा है ना उसको out कर देगा, because it will forward this particular interrupt acknowledgement signal to next device. It's a lower priority device, right? It may possible in this case let's say priority interrupt will help us to determine that based on the priority it is going to be executed, or that particular device is going to be served. Let's say at the same time all three devices had made an interrupt request. So which device get a first preference? Device 1, because it's having a higher priority, right? So एक ही साथ में तीनों ने सेंड किया होता तो भी सबसे पहले चांस दिया जाता इंटरप्ट डिवाइस 1 को, राइट? इंटरप्ट डिवाइस 1 को, बिकॉज जब अगर उसका प्रायोरिटी इन है, जो उसने इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल ऑन किया होता, तो डिवाइस 1 ने जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया, उसका सर्विस रूटीन रखा नहीं होता, तब तक उसने प्रायोरिटी आउट नहीं की होती. बट लेट्स अज्यूम दैट यहाँ पे इन दिस केस फर्स्ट अपना सिनारियो है जो डिवाइस 2 हैड मेड एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट. सो पहले क्या करेगा, डिवाइस 1 के पास इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जाएगा. Device 1 will forward this priority signal to acknowledgement signal to the device 2 by making PO.
प्रायोरिटी आउट इक्वल टू इनेबल करके वो कर जाएगा। नाउ इन दिस केस डिवाइस 2 ने क्या किया था कि डिवाइस 2 ने एक्चुअल में इंटरप्ट रिक्वेस्ट किया था, whose service routine needs to be served by the CPU. So device 2 को प्रायोरिटी इन में जाएगा, इट विल डिसेबल द प्रायोरिटी आउट सिग्नल। ओके, प्रायोरिटी आउट सिग्नल डिसेबल करेगा, प्रायोरिटी इन लेगा, दैट मीन्स वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लेगा और उसके बेसिस पे अगर उसने किया है टर्म, सेकंड टर्म पहले के बाद दूसरा टर्म उसका आया प्रायोरिटी के बेस पे, सो वो क्या करेगा, VAD फॉर 2 डिवाइस 2, VAD इज अ वेक्टर एड्रेस। वेक्टर एड्रेस में एक एड्रेस दिया जाता है, ये एड्रेस ऐसा है कि डेट प्रोसेसर डेटा बस के ऊपर जाएगा, वेक्टर एड्रेस से जाएगा, तो वेक्टर एड्रेस से क्या होगा कि सीपीयू विल टेक दैट वेक्टर एड्रेस और वेक्टर एड्रेस पे जाके उसको उसका जो सब रूटीन है, वो डिवाइस जो इंटरप्ट कर रही है उसका जो सब रूटीन है जिसको वो इंटरप्ट हैंडल करेगा, तो सीपीयू विल एग्जीक्यूट दैट इंटरप्ट, दैट पर्टिकुलर you can say that particular subroutine, right? So vector address सेंड करके फिर वो CPU क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर सबरूटीन को एक्सेस करेगा, ठीक है। नाउ द सेम वे दैट इज इन द प्रायोरिटी मैनर। सी, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हार्डवेयर लेवल पे प्रायोरिटी किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है, ये सिर्फ इस छोटा सा डिस्कशन था इसके लिए, ठीक है। एंड जो भी हमने यहाँ पे ये जो डिस्कशन किया है उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है, दिस इज समथिंग विच इज इंटरनल और किस तरह से फॉरवर्ड होता है ना, इंटरनल डिवाइस के अंदर इंटरनल किस तरह से प्रोवाइड होता है। सो लेट्स से प्रायोरिटी इन है और प्रायोरिटी आउट है, ठीक है, तो इसके बीच में सर्किट किस तरह से होती है, क्या होता है, व्हाट इज पीआई, व्हाट इज आरएफ, दोनों को मिला के ये अगर पीआई और आरएफ के सिग्नल्स ऑन होते हैं तो किस तरह से कौन सा बाहर जाने देना है, कौन सा अंदर जाने देना है, ठीक है। तो इस तरह से सभी सिग्नल्स चेंज होती है, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न, वी जस्ट नीड टू वी आर जस्ट हियर टू अंडरस्टैंड द ब्रीफ, सिंपली एक ओवरव्यू एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई हाउ किस तरह से कुछ इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस, वी हैव सीन द ब्रीफ अबाउट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, व्हाई वी रिक्वायर DMA, राइट। सो DMA का अल्टीमेट पर्पज ये है कि नॉर्मली जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, सो डेटा ट्रांसफर में से हमें जो भी प्रोसेस होती है डेटा ट्रांसफर की, सो डेटा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, लेकिन उसको मेमोरी आईओ डिवाइसेस से मेमोरी और मेमोरी से आईओ डिवाइसेस तक ले जाने में सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब तक क्या होता था कि सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट रहता था, सो सीपीयू का अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है तो सीपीयू को क्या है कि ट्रांसफर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने होते हैं। सो अगर वो ट्रांसफर के अंदर फोकस करता तो क्या होगा कि उसका खुद का काम जो है वो छोड़ के उसको ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर में उसको टाइम उसका यूज करना होता है, ठीक है। सो टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग इफिशियंसी, प्रोसेसर को प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें मैक्सिमम सीपीयू के पास है ऐसी चीजें है जिसमें सीपीयू कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है, सिर्फ नॉर्मल एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में उसका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको अवॉइड करवाना है। सो डेटा ट्रांसफर इज देयर विच इज रैपिडली और फ्रिक्वेंटली नीडेड, राइट। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसके अंदर डेटा ट्रांसफर कई बार इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। इट में पॉसिबल कि भाई नॉर्मली जो भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसमें से 70-80% टाइम जो है ना सीपीयू प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर में लगाता है, अगर नॉर्मल को सिनेरियो हो तो 70-80% टाइम अगर हम डेटा ट्रांसफर में उसको वेस्ट ना करवाए और उसकी जगह पे सीपीयू को क्या करे कि कुछ जो भी इंस्टेट करना है उसके लिए सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे और सीपीयू उसका काम जो कंटिन्यू करवाए, तो इस तरह से कोई मैकेनिज्म आए सीपीयू को हम अगर फ्री कर दें, डेटा ट्रांसफर में इन्वॉल्व होने से फ्री करते हैं, ठीक है, क्या करना है सिर्फ बता दे, उसके बाद उसको फ्री कर दे, तो क्या कर जाएगा कि डेटा ट्रांसफर को छोड़ के सीपीयू के पास कई सारे और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के जो होते हैं प्रोसेसिंग के अंदर, तो सीपीयू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग और सीपीयू विल बिजी इन एग्जीक्यूटिंग अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ वेटिंग और इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द डेटा ट्रांसफर। सो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए तो हम प्रोसेसिंग की इफिशिएंसी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट कॉन्सेप्ट नॉर्मली डेटा ट्रांसफर किसके बीच में होता है, डेटा ट्रांसफर बीच में होता है आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में, लेकिन उसको वाया सीपीयू होता है क्योंकि मतलब सीपीयू इज अ कंट्रोलिंग यूनिट विच कंट्रोल्स दिस डेटा ट्रांसफर। सो इंस्टेड ऑफ इसमें जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम सीपीयू क्या करता है कंट्रोलिंग में उसको फैन करता है, उसके बेटर है कि एक ऐसा कोई कंट्रोलर लाया जाए हु कैन डू अ टास्क ऑन बिहाफ ऑफ सीपीयू। हाँ, सेम डेटा ट्रांसफर या डेटा ट्रांसफर की जो प्रोसेस है उसका डेटा ट्रांसफर का जो हैंडल करने के लिए वो पर्टिकुलर कंट्रोलर हो जो क्या करेगा कि सीपीयू जो काम करता है ना, जो ट्रांसफर के लिए जो हैंडलिंग करने का काम, वो पर्टिकुलर कंट्रोलर विल वर्क डू दैट वर्क फॉर द
ऑन बिहाफ ऑफ सीपीयू। सो क्या होगा कि सीपीयू फ्री भी हो जाएगा, सीपीयू उसका खुद का काम करेगा, और देन उसका डिवाइस कंट्रोलर जो होगा, वो जो कंट्रोलर होगा उसका काम सिर्फ एक ही है कि उसको मैनेज करना है, सिर्फ ये डेटा ट्रांसफर उसको मॉनिटर करना है, या उसके लिए जो भी थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन जो भी नीडेड है, ठीक है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना है। उसके पास हम दूसरा कुछ नहीं काम करेंगे, सिर्फ इट विल ओनली फोकस ऑन डेटा ट्रांसफर, ठीक है। सो इस तरह का मैकेनिज्म लाया गया है, वेयर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस उसको नाम दिया गया है डीएमए। सो उसमें क्या होगा कि whenever any peripheral device or IO device wants to communicate with memory, okay, तो there will be a DMA controller, ठीक है, DMA controller, that means direct memory access। यहाँ पे direct memory कौन access करेगा? Your IO device will directly access the memory। पहले क्या होता था कि IO device are accessing memory via CPU, CPU को request करता है, CPU will जो भी instruction है वो memory में से लेके फिर वापस IO devices को देता था। सो वाया CPU होना था, उसमें क्या करेगा अभी डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ वाया करके डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने जा रहे हैं। सो उसको हैंडल करने के लिए वी रिक्वायर सम कंट्रोलर, एंड दैट कंट्रोलर इज डीएमए कंट्रोलर, राइट। सो किस तरह से वो काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो in a direct memory access sometimes we require block of data transfer from high speed devices to different devices, other devices, right? So there is required a DMA controller. DMA controller is like an interface which allows IO transfer directly between memory and devices, okay, which will free the CPU for the other task, right? Will free the CPU most of the time। ये को इसकी सीरियसनेस ऐसी है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो नंबर ऑफ टाइम सीपीयू को क्या है, मेमोरी और आईओ ट्रांसफर के बीच में जब तक ये डेटा ट्रांसफर होते हैं ना, तब तक सीपीयू कुछ नहीं करता है, सिर्फ मॉनिटर करता है कि डेटा ट्रांसफर ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करेंगे कि सीपीयू बताएगा कि यहाँ से यहाँ डेटा लेके जाना है, इतने वर्ड्स रीड करने, इतने वर्ड्स राइट करने, सिर्फ इनिशलाइज करवाएगा सीपीयू। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन दे के फिर वो छूट जाएगा और उसका खुद का काम कर देगा, और दैट इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू दैट कंट्रोलर। नाउ इट इज अ टास्क ऑफ दैट कंट्रोलर टू मैनेज दैट डेटा ट्रांसफर, ठीक है। सो सीपीयू को उसको फ्री कर दिया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके वो फ्री कर दिया। सीपीयू विल कंटिन्यू हिज ओन वर्क एंड डेटा ट्रांसफर, डेटा डीएमए कंट्रोलर विल हैंडल दोस डेटा ट्रांसफर, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ डीएमए कंट्रोलर which is mainly freeing CPU for the other task, and CPU initialize DMA control। listen carefully, यहाँ पे कुछ ऐसे जो है, यहाँ पे कुछ एक प्रोसेस ही है, बेसिक प्रोसेस ही है। जब भी डेटा ट्रांसफर की जरूरत पड़ेगी, डीएमए रिक्वेस्ट आएगी, तो सीपीयू क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर देगा बाय सेंडिंग मेमोरी एड्रेस एंड ब्लॉक साइज, नंबर ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही डीएमए की रिक्वेस्ट आएगी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट आएगी, तो सीपीयू को क्या करेगा, सीपीयू है ना, डीएमए कंट्रोलर उसका समझ लो कि एक लेफ्ट हैंड है उसका सीपीयू का, कि जो उस लेफ्ट हैंड को बता देगा कि भाई आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से ये डेटा लेना है, इतने वर्ड्स लेने हैं, मतलब 5 वर्ड लेने हैं, और 5 वर्ड को वहां पर राइट करवाना है या उसको ट्रांसफर करवाना है। उसका जो भी इनिशियलाइजेशन करना है कि क्या करना है, किस तरह से करना है, वो शायद जैसे हम किसी हमारे से लोअर ऑर्डर में जो काम करते हैं हमारे से, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपको ये करना है, इतने टाइम में करना है और इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपना काम करते हैं, और उसका जो हमारे जो उसकी हमारी जो वो पर्टिकुलर वर्क की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम उसको साइन कर देते हैं। द सेम वे सीपीयू क्या करेगा, व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायर्ड ऑफ डेटा ट्रांसफर और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सीपीयू करेगा कि डीएमए कंट्रोलर है उसको बता देगा कि भाई पर्टिकुलर एड्रेस पे से इतने वर्ड्स आपको रीड करने हैं, और कितने वर्ड्स जो भी वो वर्ड के काउंट आएंगे, भाई इतने वर्ड को आप रीड करवाओ, और उसको जो भी प्रोसेस करने के लिए, जो भी एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी टास्क सीपीयू करता, वो डीएमए को इनिशियलाइज करके भी डीएमए को कंट्रोल दे देता, ठीक है। तो उसको कंट्रोल देने के लिए इट रिक्वायर्ड सम एक्सेस ऑफ बसेस मतलब जो भी डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर इंस्टेड ऑफ सीपीयू नाउ डीएमए कंट्रोलर विल हेल्प विल टेक केयर ऑफ दोस डेटा ट्रांसफर। तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी जो बसेस होती है, 3 लाइन जो होती है, एड्रेस लाइन, डेटा लाइन और कंट्रोल लाइन, तो वो सीपीयू से कनेक्टेड होती है, ठीक है। नाउ इन दिस केस डीएमए के लिए अगर डीएमए कंट्रोलर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उस बसेस का कनेक्शन जो है, वो बसेस का कनेक्शन डीएमए के साथ भी होना चाहिए, डीएमए कंट्रोलर के साथ भी होना चाहिए। लेकिन जैसे नॉर्मली उसका कंट्रोल सबसे पहले रहेगा किसके पास, सीपीयू के पास, बिकॉज इट्स नॉट एवरी टाइम के भाई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ही एवरी टाइम यूज होती है, इट्स नॉट लाइक दैट। सीपीयू को मेमोरी को दूसरे उसके प्रोसेस के लिए भी एक्सेस करनी होती है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक आईओ ट्रांसफर, आईओ डिवाइसेस में से मेमोरी को डायरेक्ट हर तरफ होता है। समटाइम्स जो मेमोरी इनबिल्ट में है, तो मेमोरी एक्सेस जैसे रैम में से डेटा फैच करने में, उसको वापस रैम में रखने के लिए सीपीयू नीड्स बसेस एज वेल, ठीक है। सो जो भी बसेस होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है सीपीयू के पास। बट व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वेस्ट, डीएमए की जो रिक्वेस्ट होगी,
ना। आप ये मैं जो बता रहा हूँ इसको एक एग्जांपल के तौर पे ही ले लो कि भी जब भी इस तरह से कुछ भी होता है सीपीयू क्या करेगा कि जनरल एग्जांपल के तौर पे आप दिमाग में रखिए, और उसको जब भी कोई क्वेश्चन किया जाएगा या असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है तो उसके रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल देना है, तो ये इस टाइप का जनरल लाइफ एग्जांपल दो कि जहां पे किस तरह से डीएमए कंट्रोलर काम करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सीपीयू को इट्स नॉट लाइक दैट, डीएमए कब होगा, व्हेनेवर देयर इज अ पेरिफेरल डिवाइसेस हु वांट टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मेमोरी, हाँ, सीपीयू को बाहर निकाल के, एट दैट टाइम आईओ और मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर है उसके लिए डीएमए रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। नाउ सीपीयू अगर दूसरा कुछ काम कर रहा है तो दूसरा कुछ काम करने के लिए उसको सीपीयू ऑलवेज वर्क्स विद मेमोरी, राइट। सो अगर प्रोग्राम आईओ में नहीं लेकिन मेमोरी में से तो कुछ डेटा जो रजिस्टर से या मेमोरी में से डेटा है उसको नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए तो मेमोरी एक्सेस करनी ही होती है, ठीक है। सो सीपीयू के पास ही कहता है मेमोरी एक्सेस करने के लिए इट रिक्वायर्स बस रिक्वायर्ड होती है उसको, तो सीपीयू के पास ही बस इसका कंट्रोल रहता है। व्हेनेवर देयर इज अ डीएमए रिक्वेस्ट जैसे ही आएगी, ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा कि जो बस इसका कंट्रोल उसके पास है वो बसिस का कंट्रोल डीएमए कर देगा, अदरवाइज वो डीएमए को बसिस का कंट्रोल नहीं देता है। नॉर्मल एप्लीकेशन में उसका कंट्रोल उसके पास ही रखेगा। व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आईओ डिवाइसेस फॉर डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आएगी, एट दैट टाइम डीएमए कंट्रोलर का सबसे पहले वो इनिशियलाइज करवाएगा और उसके बाद वो बसिस का कंट्रोल डीएमए को देगा, ठीक है। सो बसिस का कंट्रोल जैसे डीएमए के पास जाएगा तो दैट टाइम सीपीयू विल डू देयर, मेमोरी ट्रांसफर नहीं करेगा, उसके अलावा कुछ भी करेगा, ठीक है। मेमोरी ट्रांसफर में जो उसको बसिस की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बसिस की रिक्वायरमेंट का काम नहीं करेगा, उसके अलावा दूसरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। दैट इज वाज द जनरल थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू डीएमए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू डायग्राम्स। सो सीपीयू बस सिग्नल्स फॉर डीएमए ट्रांसफर, उसमें क्या होगा कि देयर इज एन आईओ डिवाइसेस, इन दिस केस two IO devices. That means what? IO devices will give us DMA request to the DMA controller. DMA controller के पास क्या आ जाएगा? DMA request, कि भाई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जाएगी। Now DMA का कंट्रोल लॉजिक जो इंटरनल होता है उसमें क्या होगा कि DMA रिक्वेस्ट जैसे ही आती है ना तो CPU DMA कंट्रोलर क्या करेगा कि भाई DMA को इनिशियल करने के सबसे पहले वो बस ग्रांट BR बस रिक्वेस्ट, सॉरी नॉट बस ग्रांट, डीएमए सिलेक्ट और बस रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? सीपीयू को, कि भाई देयर इज अ डीएमए रिक्वेस्ट, तो बस रिक्वेस्ट, देयर इज अ डीएमए रिक्वेस्ट, तो मुझे बस रिक्वेस्ट बस मुझे ग्रांट कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि बस का कंट्रोल किसके पास रहता है? सीपीयू के पास, ठीक है। सो डीएमए को हैंडल करने के लिए इट रिक्वायर्स बस ओके, सो उसके लिए वो बस रिक्वेस्ट करता है सीपीयू को। ना जैसे ही बस रिक्वेस्ट आती है ना तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू को क्या करना होता है कि जैसे डीएमए जो रिक्वेस्ट आती है तो डीएमए को सर्व करने के लिए सीपीयू को सबसे पहले डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज करना होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ रजिस्टर विच इज अवेलेबल इन डीएमए कंट्रोलर। जो सीपीयू क्या करेगा कि भाई एड्रेस बस, डेटा बस, रीड राइट जो भी सिग्नल्स है, तो सीपीयू ये करेगा कि इसके जो अलग अलग रजिस्टर से डीएमए कंट्रोलर के, सो डीएमए कंट्रोलर के जो रजिस्टर है उसके अंदर वो इनिशियलाइज करवाएगा कि भाई एड्रेस बस बफर जो है मान लो, सो सीपीयू करेगा कि भाई मेमोरी में या कोई भी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसमें से कौन सी लोकेशन पे से, है ना, ये डीएमए रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड होती है आगे, तो बस जो रिक्वेस्ट करता है ना उसके अंदर पूरा पता चलता है कि भाई डीएमए कौन सी एड्रेस पे से कुछ रीड करना है और कहाँ पे कितने काउंट रीड करने हैं, क्या क्या कंट्रोल सिग्नल्स है वगैरह जो भी है। सो बेसिकली सीपीयू क्या करेगा कि डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज करेगा कि भाई डीएमए कंट्रोलर, अगर डीएमए कंट्रोलर आप नहीं होते तो सीपीयू जो भी काम करता ना, उस जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सीपीयू क्या करता है कि डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो कहाँ से रीड करना है, कितने वर्ड रीड करने हैं, सारी बाकी की जो डिटेल्स है, दैट डिटेल्स आर इनिशियलाइज इनटू डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर को वो इनिशियलाइज करता है और फिर वो बस ग्रांट सिग्नल जो है, बस ग्रांटेड सिग्नल वो इश्यू करता है सीपीयू। आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस रजिस्टर्स, वो क्या करेगा कि सीपीयू विल गिव अ बस ग्रांट सिग्नल और एक्टिवेट अ बस ग्रांट सिग्नल। दैट मीन्स व्हाट? डीएमए कंट्रोल को बस का कंट्रोल उसने दे दिया। बस का कंट्रोल कब देगा? जब वो सारे डीएमए कंट्रोल के जो इंटरनल रजिस्टर है उसको इनिशियलाइज करेगा उसके बाद, ठीक है। सो व्हेनेवर डीएमए कंट्रोलर विल रिसीव दिस बस ग्रांट सिग्नल, दैट विल गिव एन डीएमए एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। डीएमए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल वो आईओ डिवाइस को देता है और जैसे ही डीएमए एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो देन डायरेक्टली वो जो भी ट्रांसफर है ना वो इनिशिएट होता है, एंड दैट इज वाया डीएमए कंट्रोलर, नॉट इन दिस केस, नॉट इन थ्रू सीपीयू बट दैट इज थ्रू डीएमए कंट्रोलर। जो डेटा ट्रांसफर होगा आईओ और मेमोरी के बीच में, दैट इज वाया डीएमए कंट्रोलर, ठीक है।
सो ये सारे जो सिग्नल्स है डेटा ट्रांसफर के, डेटा बस बफर क्या करेगा कि डेटा बस बफर में जो भी डेटा रीड कर रहे हैं और राइट करने हैं जो भी इन बिटवीन, ठीक है, वो सारे यहाँ डेटा बस बफर में यूज होते हैं। जिस तरह से सीपीयू हैंडल करता था, इस केस में क्या होगा कि देयर इज अ डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर का स्पेसिफिक टास्क है कि उसको जो डेटा ट्रांसफर है उसको हैंडल करना है, दैट्स इट। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है बस इसकी और वगैरह की, जो किस तरह से इश्यू होती है, ठीक है। सो देयर आर सम ऑफ द आईओ ऑपरेशंस दैट इज परफॉर्म बाय डीएमए। सो स्टार्टिंग इन आईओ, जैसे ही आईओ की रिक्वेस्ट आएगी या डीएमए की रिक्वेस्ट आएगी तो सीपीयू कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है ना। सीपीयू एग्जीक्यूट सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू लोड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। ये किसके लिए, क्योंकि लोड करना है उसका मतलब डीएमए को इनिशियलाइज करने के लिए डीएमए के अंदर जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है कि मैं कौन से एड्रेस पे से कुछ रीड करना है, कितने वर्ड्स रीड करने हैं, और लोड फंक्शन रीड करना है, राइट करना है, क्या करना है, कुछ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिससे रिक्वेस्ट में आएगी ना तो उसके अंदर डीएमए रिक्वेस्ट में अंदर सब कुछ आएगा कि भाई पर्टिकुलर डिवाइस को कुछ रीड करवाना है या उसमें कुछ राइट करवाना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अंदर आएगी। एंड देन एट द लास्ट ये इनिशियलाइज करने के बाद इट विल इश्यू अ गो कमांड। गो कमांड इन द सेंस कि बस ग्रांट करेगा और फिर इट विल एग्जीक्यूट, इट विल गिव अ कंट्रोल टू डीएमए कंट्रोलर। बस का जो कंट्रोल है वो डीएमए का। अपॉन रिसीविंग ए गो कमांड डीएमए परफॉर्म्स आईओ ऑपरेशंस एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अपॉन रिसीविंग अ गो कमांड डीएमए परफॉर्म्स आईओ ऑपरेशन। जैसे ही गो मिलता है दैट मीन्स व्हाट, जैसे ही सीपीयू उसको बस ग्रांट करता है उसके बाद डीएमए क्या करता है, कुछ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट वी हैव डिस्कस, है ना, एज फॉलो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सीपीयू। यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर नाउ जैसे ही गो कमांड मिलता है ना तो डीएमए, इट्स अ टास्क ऑफ डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर इंडिपेंडेंटली हैंडल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस जो भी डेटा ट्रांसफर के लिए है। तो इनपुट के लिए है या आउटपुट के लिए, मान लो अगर इनपुट के लिए है तो जो कंट्रोल सिग्नल है उसको इनपुट में ले, इनपुट डिवाइस के लिए जाएगा वो कि भाई किसके लिए रीड करना है, ठीक है। देन देयर इज ए बीएफ बफर, डीएमए कंट्रोल के पास बफर है। सो इनपुट बाइट जो भी रहेंगे इनपुट डिवाइसेस के लिए, सी इनपुट के लिए है उसका मतलब ये हुआ कि आईओ डिवाइस में से, इनपुट डिवाइस में से कुछ इनपुट लेगा और उसको रीड करना है और उसके बाद उसको फिर वहां पे मेमोरी में कहीं पे भी राइट करवाना है। समझ रहे हो मेरी बात। सी इनपुट, अगर माउस में से कुछ इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो माउस विल आस्क फॉर द, और माउस विल गिव अ रिक्वेस्ट टू माउस विल गिव अ डीएमए रिक्वेस्ट टू द डीएमए कंट्रोलर। तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी कितने, क्योंकि सीपीयू ने इश्यू किया होगा इनपुट कमांड, किस तरह किया कि भाई सीपीयू को इनपुट चाहिए माउस से, तो माउस को उसको पता है सीपीयू की कौन सा है, कहाँ से जो भी लेना है, कहाँ पे रखना है, वो सब कुछ पता है उसको सब कुछ इनिशियलाइज किया गया है कि भाई डीएमए कंट्रोलर को सीपीयू बता देगा कि आपको ये करना है, ये करना है, और यहाँ से डेटा लेके जाना है, ठीक है। सो जिस तरह से जैसे ही आएगी रिक्वेस्ट इनपुट के लिए तो सेम वे में इनपुट जो बाइट्स हो गए दैट विल बी कैप्ट विद द डीएमए कंट्रोलर का जो बफर होता है उसके अंदर जाएगा। देन वो जो राइट कमांड इश्यू करेगा और वो मेमोरी लोकेशन पे, मेमोरी एड्रेस पे वो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी नेक्स्ट वर्ड काउंट करना है उसके लिए नेसेसरी कि एड्रेस को 1 से रजिस्टर कराओ, और जिससे भी वर्ड का है तो कितने वर्ड रीड करने हैं, है ना, कि मान लो 5 वर्ड दिए तो पहला वर्ड जैसे ही राइट कर दिया उसके बाद उसको वर्ड को डिक्रीमेंट करना है, तो वर्ड काउंट जो भी है, काउंटर जो भी होगा उसको डिक्रीमेंट करवाना है। तो वर्ड काउंटर रजिस्टर में मान लो सीपीयू ने इनिशियलाइज किया कि भाई आपको 5 वर्ड उसको में रीड करवाने हैं। पहला वर्ड रीड करने के बाद उसको डिक्रीमेंट कर देगा, दूसरा वर्ड करेगा, तीसरा वर्ड करेगा, चौथा वर्ड डिक्रीमेंट कर देगा, और 5वां आएगा तो WC = 0 हो जाएगा, मतलब वर्ड काउंट विल बी 0, है ना, वर्ड काउंट विल बी 0। उसका मतलब जैसे ही वर्ड काउंट = 0 आएगा देन एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट डन हो गया, फिर उसको जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि डीएमए कंट्रोलर ने उसका काम कंप्लीट कर दिया और उसको सर्व कर दिया। तो एक्नॉलेजमेंट डीएमए उसको जाएगा, किसको, कि जिसने डीएमए रिक्वेस्ट की उसको डीएमए एक्नॉलेजमेंट जाएगी, और जिसके पता चलेगा भी नाउ डीएमए कंट्रोलर का काम हो गया। जिस तरह से उसका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो बस जो भी ग्रांट की गई है वो दैट विल बी हैंडल टू द सीपीयू ना। सीपीयू उसके बाद की जो भी है जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जो बस ग्रांट की गई थी डीएमए रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसको भी वापस ले जाएगा। तो सेम चीज होती है कि आउटपुट डिवाइस अगर कोई रिक्वेस्ट करती है तो उसमें क्या होगा कि भाई प्रिंटर को डेटा को सेंड करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी बता रहा हूँ दैट इज यू कैन से इट्स अ जनरल लाइफ एग्जांपल कि भाई अगर मान लो सीपीयू को कुछ प्रिंटर को देना है तो क्या करेगा कि सीपीयू विल इनिशियलाइज द डीएमए कंट्रोलर कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक डीएमए ट्रांसफर करवाना है मेमोरी से डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। तो उसमें मेरा इंटरवेंशन है, मैं मेरा खुद का काम करूंगा, यू जस्ट हैंडल दिस डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाई मेमोरी में से कुछ डेटा लेगा, वो जो कहाँ से लेना है, कहाँ से रीड करना है, तो सब कुछ सारी चीजें सीपीयू क्या करेगा डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज करके बता देगा, ठीक है। तो उसके बाद डीएमए कंट्रोलर विल टेक केयर ऑफ द बस का कंट्रोल लेगा उसके पास, और मेमोरी में से वो पर्टिकुलर एड्रेस पे से कुछ डेटा रीड करेगा, जो भी हमारी फाइल या जो भी जो जॉब वगैरह है
कितने वर्ड करने हैं वो भी उसको मिले जाए, वो रीड करते करते फिर वो आउटपुट डिवाइस पे सेंड करता रहेगा, ठीक है। सो काम कंप्लीट हो गया है, तो डायरेक्टली डीएमए कंट्रोलर विल टेक केयर ऑफ दिस डीएमए ऑपरेशंस ना, जो भी डेटा ट्रांसफर के ऑप्शन है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यही है सिर्फ चीजें जो नॉर्मल क्या इस तरह से फॉलो होता है, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डीएमए जो रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, सो इट्स नॉट एवरी टाइम कि भाई जो भी सीपीयू जब भी काम करता है दैट विल बी थ्रू डीएमए कंट्रोलर, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। डीएमए की रिक्वेस्ट स्पेसिफिकली आती है आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में जब स्पेशली कम्युनिकेशन होना है ना, एट दैट टाइम डीएमए की रिक्वेस्ट आती है। अदरवाइज जो सीपीयू उसके खुद की प्रोसेस के लिए जो मेमोरी एक्सेस करता है या कुछ भी एक्सेस करता है, ठीक है, तो उसके लिए एवरी टाइम उसको डीएमए की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि बसेस का कंट्रोल किसके पास रहता है, इनिशियली सीपीयू के पास, बिकॉज सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू इज गोइंग टू यूज दैट बसेस, ठीक है। बट व्हेनेवर देयर इज स्पेसिफिकली ये डीएमए रिक्वेस्ट होगी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट होगी, एट दैट टाइम दैट कंट्रोल बसेस कंट्रोल विल गो टू द डीएमए कंट्रोलर, अदरवाइज इट विल बी कैप्ट विद द सीपीयू। नाउ व्हेन डीएमए और आईओ टेक प्लेस, डीएमए आईओ टेक प्लेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस स्पेसिफिकली जब कम्युनिकेट करेगा, जब वो टेक प्लेस होगा, एट दैट टाइम सीपीयू इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग सम इंस्ट्रक्शन। जब इनपुट आईओ ट्रांसफर की जरूरत पड़े तो सीपीयू इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग सम इंस्ट्रक्शन। नाउ इन दिस केस जब भी डीएमए कंट्रोलर एंड सीपीयू बोथ एक्सेस मेमोरी, मान लो इसमें मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है, बिकॉज वेन एवर लेट्स से सीपीयू है और डीएमए कंट्रोलर है। नाउ मान लो अगर एक बार सबसे पहले क्या हुआ कि सीपीयू ने क्या किया, डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर दिया, और डीएमए कंट्रोलर क्या कर रहा है कि भाई इनपुट डिवाइस में से जो डेटा लेता है वो डायरेक्ट मेमोरी में डाल रहा है, ठीक है। सो उसको लिए रीड और राइट करने के लिए डीएमए कंट्रोलर इज एक्सेसिंग ए मेमोरी, एट द सेम टाइम सीपीयू क्या कर रहा है कि उसका खुद का काम कर रहा है ना। उसके खुद के काम में भी मान लो उसको मेमोरी तो एक्सेस करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आर केप्ट विद द मेमोरी, तो मेमोरी को रीड करने की जरूरत पड़ी एट दैट टाइम। अगर दोनों के लिए अगर रिक्वेस्ट आई, मेमोरी एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट आई, डीएमए कंट्रोलर भी और सीपीयू भी, बिकॉज पैरेलली दोनों काम कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम देयर विल बी अ मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, है ना, दोनों एक साथ में मेमोरी एक्सेस करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग मतलब हर एक साइकिल जो क्लॉक साइकिल होती है ना, उस पर ये सारे ऑपरेशन होते हैं। सो इन दैट केस देयर इज अ मेमोरी बस कंट्रोलर। वो क्या करेगा कि इट विल कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिवाइसेज रिक्वेस्टिंग मेमोरी एक्सेस। मेमोरी बस कंट्रोलर होता है जो जितनी भी डिवाइसेस जो मेमोरी एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। और देयर इज अ प्रायोरिटी सिस्टम। प्रायोरिटी सिस्टम में होता है कि हायर प्रायोरिटी को सबसे पहले मेमोरी एक्सेस मिलती है एज कम्पेयर टू द लोअर प्रायोरिटी। नाउ इन दिस केस लेट्स से मेमोरी एक्सेस बाय सीपीयू एंड डीएमए कंट्रोलर इंटरवोवन, इसका मतलब विद द टॉप प्रायोरिटी गिवन टू द डीएमए कंट्रोलर। सो इन दिस केस लेट्स से इफ देयर इज अ डीएमए कंट्रोलर एंड सीपीयू एट द सेम टाइम, if those are requested to access a memory, so priority in this case, priority किसको मिलती है, प्रायोरिटी इज गिवन टू डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। दोनों को एक साथ में एक्सेस कर रहा है, देन एट दैट टाइम द प्रायोरिटी इज गिवन टू डीएमए कंट्रोलर, इवन दो डीएमए कंट्रोलर की स्पीड जो होती है ना दैट इज लेस देन द सीपीयू स्पीड, फाइन। सीपीयू की कंपैरिजन में डीएमए कंट्रोलर की इतनी स्पीड नहीं होती है, बट स्टिल if there is a DMA request and CPU both want to access the memory, okay, अभी भी यहाँ पे confuse ना हो, CPU will access a memory for executing another instruction and DMA controller will access a memory to make data transfer between IO device and memory device, ठीक है। वहाँ पे CPU को सिर्फ memory access करना है इंस्ट्रक्शन फैच करने के लिए या कुछ भी डेटा रीड ऑपरेंड रीड करने के लिए, बट यहाँ पे इन दिस केस IO में से जो डिवाइस में से जो डेटा आते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी को एक्सेस करनी होती है, ठीक है। सो both CPU and DMA controller is going to access the memory at the same time. In this case, in that scenario, तब क्या होगा कि DMA controller को जैसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू CPU, तो उसमें DMA controller will steal a cycle, एक क्लॉक साइकिल जो होती है उसकी जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करने के लिए जो क्लॉक साइकिल CPU यूज करने वाला था, इट विल स्टोलन फ्रॉम बाय DMA controller. So DMA controller instead of CPU जो clock cycle है वो DMA controller is going to use the clock cycle to perform their memory access. So उसका जो भी काम है उसको करने के लिए है. So there is a concept of cycle stealing for that reason. Okay. So memory access by CPU and DMA controller are interwoven with the top priority is given to DMA controller. So दोनों में से जो भी जिसको भी मिलता है, so top priority is given to DMA controller, right? So what CPU still will do? CPU is usually much faster than IO. Controller steals the memory cycle from the CPU, and for those stolen cycles CPU remains at that time. Whenever the CPU DMA controller will stole the cycle from the CPU, at that time CPU will remain a ideal phase. Okay, so that is, it's not a good thing where CPU is become an ideal,
Okay, so we should not make anyhow we should not make let CPU to be an ideal. जब मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट या कोई भी एनवायरनमेंट होता है, जहाँ अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो हम सीपीयू का, ठीक है. सो इन दैट कोर्स अगर हम डीएमए कंट्रोलर नहीं यूज करते थे तो हमारा सीपीयू का जो टाइम था मोस्ट ऑफ द टाइम वो डीएमए ट्रांसफर या आईओ ट्रांसफर के अंदर लगा जाता था. डीएमए कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि डीएमए कंट्रोलर जो है वो डेट विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग, बट इसके अंदर भी इट इज नॉट लाइक 100% हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन कर दिया, सीपीयू को फ्री कर दिया इसके अंदर से. वेनेवर सम सिचुएशंस लाइक दिस है ना कि दोनों को मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है साथ में, एट दैट टाइम प्रायोरिटी की बेस पे डीएमए कंट्रोलर को प्रायोरिटी मिलती है. तो एट दैट टाइम ऑल्सो सीपीयू नीड्स टू बी आइडियल, ठीक है. सो सीपीयू डीएमए कंट्रोलर में भी आइडियल तो रहता ही है. सो हमें इट्स नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन, डीएमए के बाद भी कुछ अलग सॉल्यूशन चाहिए जहाँ से क्या करेंगे कि हम सीपीयू को कम्प्लीटली हम अलग कर सके उससे, और सीपीयू से मैक्सिमम उसका काम दूसरी जो अनप्रोडक्टिव नहीं है लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर उसका काम करवा सके, ठीक है. सो फॉर दोज स्टोलन साइकिल सीपीयू विल रिमेन एन आइडियल, एंड फॉर दोज स्लो सीपीयू डीएमए कंट्रोलर में स्टिल मोस्ट ऑफ द मेमोरी साइकिल्स विच मे कॉज सीपीयू रिमेन आइडियल लॉन्ग टाइम, ठीक है. सो प्रायोरिटी अगर डीएमए कंट्रोल के इतने पॉसिबल ना, मैंने जैसे बताया आपको कि पहले 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ टाइम है ना डीएमए का रिक्वेस्ट आती है मेमोरी के लिए और सीपीयू रिक्वेस्ट करता है मेमोरी एक्सेस के लिए. इट में पॉसिबल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कितनी बार मेमोरी एक्सेस होता है, और इट में पॉसिबल कि भाई जैसे मैक्सिमम अगर आईओ रिक्वेस्ट आती रही, डीएमए की रिक्वेस्ट आती रही, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू को वेट करना रहेगा. और सीपीयू नीड्स टू बी आइडियल बिकॉज ऑफ द टू एलो डीएमए टू सर्व दिस और टू टेक केयर ऑफ दिस आईओ ट्रांसफर. सो इट में पॉसिबल कि भी जब हमारा आईओ ट्रांसफर और डीएमए रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी एट ए टाइम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू को हमें आइडियल रखना होता है. सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो उसकी जगह पे कुछ दूसरा ऑप्शंस जरूरी है जो सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए उसको कई ऐसे अननेसेसरी चीज़ में आइडियल ना रखे. सीपीयू आइडियल नहीं रखना है ना, दैट इज़ ऑल अल्टीमेट गोल. हायर प्रोसेसिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर में भी यही होता है कि सीपीयू से मैक्सिमम किस तरह से हम यूटिलाइज करवा सके सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू. सो दिस इज व्हाट डेटा ट्रांसफर डीएमए ट्रांसफर किस तरह से अचीव होता है. सी नाउ जैसे हमने जो डिस्कस किया डीएमए कंट्रोल के रिगार्डिंग, दैट इज लेट्स से हियर वी हैव अ पेरिफेरल डिवाइसेस. IO peripheral devices are there which will give a DMA request to the DMA controller. DMA controller will give a big bus request to CPU. CPU को जैसे बस की रिक्वेस्ट मिलेगी तो CPU क्या करेगा कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन CPU एंड DMA कंट्रोलर C, ठीक है. सो ये कनेक्शन का यूज कब होगा जब सीपीयू को डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज करना हो कि भी कौन से कितने नंबर ऑफ बीट्स कितने कहाँ से कौन से एड्रेस से कितने वर्ड्स आपको रीड करना है, या उसकी जो भी रिक्वायर्ड जो भी डिटेल्स है इन्फॉर्मेशन है उसको इनिशियलाइज करने के लिए सीपीयू और डीएमए कंट्रोलर के बीच में कनेक्शन है, ठीक है. सो जैसे सीपीयू डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट मिलती है बस की तो डीएमए कंट्रोलर को इनिशियलाइज करता है. डीइनिशियलाइज करने के बाद पूरा कंट्रोल जो है बस ग्रांट करता है वो डीएमए कंट्रोलर को, ठीक है. बस को ग्रांट करना उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रीड राइट एड्रेस डेटा जो कनेक्शन है दैट इज कनेक्शन सभी के बीच में रैम सीपीयू और उसके बीच में है. जब बस ग्रांट करता है सीपीयू तो उसके मतलब क्या करता है कि सीपीयू और डीएमए कंट्रोलर के बीच में जो रास्ता है या जो रूट है उसको डाइवर्ट कर देता है, दैट इज डायरेक्टली डीएमए कंट्रोलर टू रैम, ठीक है. सो डीएमए कंट्रोलर को टू रैम पूरा डाइवर्ट हो जाता है और सीपीयू और डीएमए कंट्रोलर के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन थोड़े की देर के लिए डिसेबल हो जाता है, ठीक है. सो बस ग्रांट करना मतलब ये हुआ कि उसने सीपीयू ने यहाँ से उसका कंट्रोल हटा दिया तो डायरेक्टली डीएमए कंट्रोलर को बस ग्रांट हो गई और वो बस जाएगी डायरेक्टली रैम से. सो आईओ पेरिफेरल डिवाइसेस और रैम के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा. So it can access the memory, direct memory. So direct memory access is a concept like this, ठीक है. So through this we can achieve this modes of transfer or we can increase the processing speed of computer. सो यहाँ पे भी ये हो सकता है और इससे अलावा भी एक और अच्छे ऑप्शंस होते हैं विच इज लेटेस्ट ऑप्शन दैट इज व्हाट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर चैनल में होते हैं. किस तरह से होता है कि मतलब इंस्टेड ऑफ डीएमए कंट्रोलर व्हाई डोंट वी हैव अ सेपरेट प्रोसेसर, एक प्रोसेसर ही सेपरेट हो. जिस तरह से सीपीयू काम करता है प्रोसेसिंग करता है
एक सेपरेट प्रोसेसर हो, डेडिकेटेड प्रोसेसर हो विच विल टेक केयर ऑफ आईओ डिवाइसेस. आईओ डिवाइस जो पेरिफेरल डिवाइस के बीच में जो भी कंप्यूटर जिसको भी क्या भी कुछ भी करना है, डीएमए को रिक्वेस्ट करनी है, डीएमए को कंट्रोल देना है, दैट विल बी टेकन केयर बाय आईओपी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. ठीक है, हमने क्या किया कि इस केस में अगर हमारे सिस्टम में कुछ सिस्टम नहीं है जो होती है जिसके अंदर सेपरेट सेपरेट प्रोसेसर अलग अलग होते हैं. ठीक है, देयर इज अ डेडिकेटेड मैथ प्रोसेसर, जो मैथमेटिक्स के कुछ काम होते हैं तो सब कुछ वो मैथ प्रोसेसर करता है. इस तरह से देयर इज एन आईओ प्रोसेसर के आईओ जो भी प्रोसेस होती है आईओ के लिए जो भी ट्रांसफर होते हैं दैट विल बी टेकन केयर बाय दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर. तो उसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग के पास हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम हम यूटिलाइज करेंगे उसके मेन काम के लिए. ठीक है, ये अननेसेसरी, इट इज अननेसेसरी, बट ये ऐसी चीज है कि जो अनप्रोडक्टिव है. सीपीयू उसके परफॉर्मेंस का कुछ इंपैक्ट नहीं करता, सिर्फ डेटा ट्रांसफर यहाँ से वहां में उसका टाइम वेस्ट ना करवा के हम क्या करेंगे कि विल लेट सीपीयू डू देयर ओन वर्क वेयर दिस बेसिक थिंग्स लाइक आईओ ट्रांसफर जो भी है या कुछ भी अलग अलग चीजें है दैट विल बी टेकन केयर बाय सेपरेट प्रोसेसर. ठीक है, तो इस तरह से देयर विल बी अ सेपरेट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर where you can see here the number of PD, that is peripheral devices are connected to IO processor, and these two are connected with the memory, and there is a separate CPU, there is a separate memory bus. So IO processor and CPU both are connected to the memory, single memory unit. So everything will be taken care by IO processor, and normal processing is taken care by CPU. ठीक है, सो हमने सेपरेट कर दिया है दोनों प्रोसेसर को. सो सीपीयू विल डील विथ देयर कॉन्टेक्ट्स एंड आईओपी विल डील विथ देयर उसका जो भी काम है प्रोसेसर को हैंडल करना. सो सी सम मोर डिस्कशन वी कैन डिस्कस मोर ऑन दिस आईओ प्रोसेसर, बट इट इज नॉट दैट मच इन आवर सिलेबस. बेसिकली दिस ऑल आर द कॉन्सेप्ट विच कम्स अंडर पैरेलल प्रोसेसिंग. So no, rather discussing on this, we'll simply keep up to a DMA controller. Okay, where in our assignment the question is something which where you need to give an example. So you can give the example of this is how we have cycle stealing का जो भी example था किस तरह से दे सकते हैं, और what are the sequence of steps that is doing. So these all other things ना किस तरह से CPU initialize करता है. तो कमांड गो कमांड आता है, उसका मतलब गो के अंदर बस रिक्वेस्ट करते हैं, बस ग्रांट होती है, उसके बाद जो भी इनिशियलाइज करना है तो इनपुट में किस तरह से होगा, आउटपुट में किस तरह से, तो दिस आर द कमांड्स किस तरह से करेंगे. सो यू कैन राइट दिस थिंग for that. So we'll keep up to this DMA transfer. Okay, and that is an end of chapter. So we'll see you on the next module, that is memory organization. We have covered the thing, but we'll prepare a separate video for this different module as well. Right? Thanks for watching.